The LR parser is the bottom up parser. The name bottom up, it's also indicate that we have a proceed from the children to root. Okay, there are a 4 category of a LR parser: LR0, SLR1, LLR1, and CLR1. And the LR0 and SLR1 solve with the help of a LR0 item. Okay, and LALR1 and CLR1 solve with the help of a LR1 item. We have explained in detail in a further few minutes. We have try to understand what is a LR0 item, what is a LR1 item, and what is the main significance of a LR parser. So here we have a understand basic functioning about this one. Yeah, how the LR parser is work. Here is take the stack as an input, and input buffer is also take as input. Okay, and the associated the LR parsing table. LR parsing table is a much more responsible for that. Okay, how the it take the decision mainly how the LR parser is work. So here we get the 3 type of a input: stack, input buffer, and LR parsing table. And whatever output it is produces, it is the parse table. ये क्या करता है? Stack, input buffer, and LR parsing table as the input लेता है. And based on you take the input like that, stack and input buffer, and the LR parser take the decision with the help of a LR parsing table. इसीलिए whenever we have used the bottom up parsing or LR parsing, everything is the same. Everything mean what? Input buffer is the same, stack is the same. Okay, but each time the parsing table is different. That means LR0 parsing table is different, SLR1 parsing table is different, LLR parsing table is different, and CLR parsing table is different. We have studied all of this in a very detailed way. Okay, how we can construct what is the LR0 item, what is the LR1 item. Okay, so here today we have a study. It's the what is a step to solve the LR0 sums. What is a LR0 sum? This one, because this is the basic of a these two algorithm, LR0 and SLR1. So first of all, understand this one. What is a LR0 item and what kind of a step involved to solve the LR0 item. Is it clear? Here, have you any doubt? Okay. So now we have a study this topic. A step to solve. What kind of a steps involved? A step to solve LR0. It's a very important point. What is a step number first? Whatever grammar is given, okay, augment the given grammar. First of all, we have write the step. After that, understand how we can augment the grammar, how we can proceed. Okay. So this step, it's very important. It's very important. Steven, have you any idea about how to augment the grammar? Steven? No idea. वंशिका, आपको पता है कैसे आर्गुमेंट ग्रामर करते हैं किसी को? नो सर, कोई नहीं, चलो अभी बताते हैं. बस ध्यान से स्टेप्स लिखो, फिर वी हैव एक्सप्लेन. एंड आफ्टर दैट देखिए कुछ यहाँ पे नए वर्ड्स होंगे, उससे डरने की जरूरत नहीं है. वी हैव एक्सप्लेन ईच एंड स्टेप आफ्टर दैट. This is a very important parsing technique and asked so many time in lot of a competitive exam and your ATQ whenever he is decided कि पेपर को थोड़ा टफ बनाना है. Okay, generally theoretical भी पूछ सकते हैं. What is the category of LR0 item? What is the algorithm? This is the step involved in the stack, input buffer, LR0 parsing. And when पेपर को थोड़ा टफ बनाना होगा, ये ask the numerical. ठीक, तो हमें दोनों करना है. ठीक है, तो इजी आ गया तो और अच्छी बात है. But we have also prepared the numerical. एक numerical तो आता ही है इससे. This is a very important topic. So augment the given grammar. Second step, draw the canonical collection of a LR0 item. What is the third one?
number of production. Number of production. Fourth one, create the parsing table. Create the this is the stack implementation. Both are the same. इस चीज को तो हमने टॉप डाउन में करके देखा है LR1 पार्सिंग implementation. Stack implementation. What is the sixth step involved here? Draw the parse. Draw the with the help of a one example, we have tried to understand how we can convert the argument grammar, okay, and how it is proceed. So हम यहाँ पे क्या learn कर पा रहे हैं? First of all, try to understand कि how to the prepare the LR0 item, because first step क्या है? Draw the canonical collection of a LR0 item. इसका क्या मतलब है? LR0 item भी इसको बोलते हैं. The second name is the LR, and how we can construct the LR0 parsing table. So we have a take one example so that easily understand how question is asked and how we can respond, and understand this all the 6 steps की वो कैसे apply करते हैं यहाँ पे learn करेंगे. क्या है question? Construct LR0 items and produced parse tree for how much का देखो यहाँ पे इनपुट गिवन है. आप पूछ रहे थे ना सर कि एक बार प्रीवियस में कि सर क्या इनपुट हमें गिवन होगा? यस, इनपुट इज अ गिवन. ठीक है, कई बार क्या होगा इनपुट में डॉलर नहीं दिया होगा लेकिन फिर भी हम डॉलर यूज करेंगे. यहाँ पे दिया है इट इज बेस्ट ना, नहीं भी दिया है तो हम डॉलर यूज करेंगे क्योंकि वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट कि हम क्या करते हैं इनपुट के ऊपर और स्टैक में डॉलर लेके चलते हैं और बेस्ड ऑन व्हाट एवर ग्रामर वी हैव गिवन, अगर मैं उसको रिड्यूस करते हुए डॉलर डॉलर आता हूँ दैट मीन वी हैव इजीली डिराइव द कास्ट. ओके, इज इट क्लियर? चलो अब इसको सीखते हैं कि कंस्ट्रक्ट द LR0 आइटम्स एंड प्रोड्यूस द पार्स. कैसे ये होता है? हियर इन ए here we have given the grammar. So what is our grammar? Our grammar is equal to E derived to BB and capital B derived to small c capital B and public G. Okay, this is the grammar. So we have solved this particular numerical. You are using these steps. Our first step क्या होगा? Argument the given grammar. We have solved and you have tried to understand how to argument any grammar. कोई grammar क्या होगा? This is our grammar. E derived to BB and B derived to small C capital B and this one. Okay, and draw the canonical collection of the LR0. ठीक, इसको learn करें. Step 1 and step 2. Step 1 अब ध्यान से समझो आर्गुमेंट ग्रामर कैसे करते हैं. आर्गुमेंट ग्रामर का मतलब क्या है कि जो भी ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल है, एवरीबॉडी लिसन वेरी केयरफुली, व्हाटएवर ग्रामर स्टार्टिंग सिंबल एस डैश इक्वल टू एस डैश से इक्वल टू वो लिख देंगे. ठीक है, हाँ, तो वो ऐसे तो वो ग्रामर में अवेलेबल नहीं. कहने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि सर वो तो नकली ग्रामर है, बट वी हैव यूज्ड दिस वन. सॉल्व करता हूँ मैं क्या है ये, कैसे वी हैव सॉल्व दिस वन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन. तो इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ. सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट. ओके, पढ़िए स्टेप फर्स्ट, आर्गुमेंट द गिवन ग्रामर. आर्गुमेंट द गिवन ग्रामर कैसे करते हैं सीखते हैं. तो भी ग्रामर यहाँ पे गिवन है. क्या ग्रामर गिवन है? दिस इज आवर ग्रामर. ठीक है, दिस इज आवर ग्रामर. ई
डिराइव टू बीवी। तो जो भी स्टार्टिंग सिंबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई है तो हम क्या लिखेंगे, ई डैश डिराइव टू ई। अगर यहाँ पे एस होता तो क्या लिखते हैं हम, एस डैश डिराइव टू एस। टी होता तो क्या लिखते हैं, टी डैश डिराइव टू एस। वट एवर इज गिवन, इसी के जस्ट डैश करके हम कह देंगे कि स्टार्टिंग सिंबल को ये डिराइव कर रहा है। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे इसको करते हैं। हियर वी डिराइव द ई डैश डिराइव टू ई and E derived to BB, and everything is the same, and B derived to small c capital B and derived to D. Is it clear? हम क्या किए हैं, ग्रामर को आर्गुमेंट ग्रामर, कभी कोई भी हमसे कोई भी ग्रामर गिवन हो और हमसे कहे कि आर्गुमेंट ग्रामर में सर इसको चेंज कर लीजिए, तो उसमें कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये जो वट एवर स्टेप इज इन्वॉल्व, ये स्टेप क्या है, नकली है। वाई भी कारण नकली, क्योंकि एक्चुअल ग्रामर में तो अवेलेबल ही नहीं, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो जो भी स्टार्टिंग सिंबल है उसको क्या करेंगे, जो भी जैसे ई है तो ई डैश से स्टार्टिंग कर देंगे, टी है तो टी डैश कर देंगे, ठीक है, क्यू है तो क्यू डैश स्टार्टिंग टू ई दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, तो स्टार्टिंग सिंबल के लिए एक हमने डैश ला के ये ग्रामर लिखे, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ग्रामर। ठीक, तो ये तो बहुत इजी स्टेप है, यहाँ से हम इजीली समझ पाएंगे कि आर्गुमेंट ग्रामर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हियर वी हैव मूव आवर सेकंड स्टेप, how we can solve this. Here we have bold this one, so you can easily. And step 2. What is step 2? Draw mechanical collection of LR0 items. ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। एवरीबडी कैन रीच हियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाँ, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, क्योंकि इसके बाद का स्टेप थोड़ा सा समझने वाला है। सॉरी, एनीबडी हैव यू एनी डाउट, एनीथिंग? ठीक है, सबको समझ आ गया ये हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन। चलो, अब इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एवरीबडी प्लीज फोकस ओनली ऑन द बोर्ड कि हाउ टू ड्रॉ द कैनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। अब हम यहाँ पे लर्न करेंगे कि LR0 आइटम को ड्रॉ कैसे करें। देखिए, LR0 आइटम क्या होता है एंड कैसे वो ड्रॉ करता है। देखो, ये इट इज द पर्पस ऑफ ए रिड्यूसिंग एंड शिफ्टिंग, दो वर्ड है जो कि शिफ्ट और रिड्यूस के लिए हम यूज करते हैं। और इसको LR0 आइटम करता क्या है, यहाँ पे जो भी ग्रामर होता है, ठीक है, पहले एक बार सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, उसके स्टार्टिंग में एक डॉट सिंबल लगाएंगे, ठीक है। वो डॉट क्या इंडिकेट करता है, दैट पर्टिकुलर डॉट इंडिकेट दैट कि अभी उस पर्टिकुलर ग्रामर में कोई भी स्टेप प्रोसेस नहीं हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मैं करके दिखाता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, अभी भी कोई भी इनपुट नहीं है, न ही कोई उसका वेरिएबल एक्सप्लोर किया गया है, न ही टर्मिनल। ध्यान से यहाँ से समझिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू टेक दिस वन, ई डैश डिराइव टू ई। ये फर्स्ट ग्रामर है। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? ये फर्स्ट ग्रामर को हमने कॉपी कर लिया फर्स्ट एज इट इज। अब इसका मुझे क्या बनाना है, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। जिस भी ग्रामर का मुझे कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ आइटम बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, उसके स्टार्टिंग में डॉट लगाना होगा। चलो मैं डिफरेंट कलर से लगा देता हूँ। हियर वी हैव यूज्ड द डॉट। इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड। इज इट विजिबल और रिक्वायर्ड सम मोर गैप? हाँ, चलो मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ना। तो ठीक है, कैनोनिकल एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए कैसे करता है। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, पहले मैं ग्रामर को आर्गुमेंट ग्रामर में बनाया। ध्यान से समझो क्वेश्चंस क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ जिससे किसी को डाउट ना हो। क्या करना है, व्हाट इज आवर क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द
ये एक इनपुट दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द LR0 आइटम एंड प्रोड्यूस द पार्स ट्री फॉर, ये लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस इज द इनपुट। ओके, आप लिख सकते हैं फॉर इनपुट, मे भी क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो तब पर भी आपको पता होना चाहिए, फॉर इनपुट दिस वन। ओके, और इनपुट में हो सकता है डॉलर नहीं लगा हो, लेकिन फिर भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय डॉलर यूज करेंगे, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है इन ए टॉप डाउन पार्सर। सो हियर हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द LR0 आइटम। LR0 आइटम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे 6 स्टेप्स आपको लिखे हैं, हाउ टू सॉल्व द LR0 सम्स और LR0 आइटम, ठीक है। बट ये फर्स्ट स्टेप, आर्गुमेंट द गिवन ग्रामर, and second step, draw the canonical collection of items and number the production and create the parse tree. That is a further more step. First of all, try to understand these two. Okay, पहले हम इन दोनों को समझेंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे। फर्स्ट क्या है, आर्गुमेंट द गिवन ग्रामर। कैसे करेंगे, जो भी ग्रामर गिवन है, ठीक, उसके स्टार्टिंग सिंबल को क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ई डिराइव टू समथिंग तो ई डैश से ई को रिप्रेजेंट कर देंगे, एस डिराइव टू समथिंग तो एस डैश डिराइव टू एस। तो इसका क्या मतलब है, एक नकली ग्रामर हम ऐड करते हैं जो कि एक्चुअल ग्रामर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल को वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ग्रामर, ठीक। ये स्टेप शायद समझ में आ गया होगा सबको। स्टेप क्या है, दिस ग्रामर इज गिवन एंड व्हाट इज योर न्यूमेरिकल, कंस्ट्रक्ट द LR0 आइटम एंड प्रोड्यूस द पार्स ट्री फॉर द इनपुट दिस वन। तो चलो इस स्टेप को तो बाद में भी करते हैं, कि पार्स ट्री तो तब बनेंगे जब पार्सिंग टेबल बन जाएगा, सब चीज हो जाएगी, क्योंकि हमें सबको पता है कि कोई भी पार्स ट्री कब जनरेट होता है, एनी पार्सर जब फाइनल स्टेप पे वो पहुंच जाता है, एज ए आउटपुट के तरीके से वो पार्स ट्री बनाता है। ओके, तो इस स्टेप से पहले हमें क्या करना होगा, LR0 आइटम कंस्ट्रक्ट करना होगा। ये कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो भी ग्रामर गिवन है, ठीक, उसके स्टार्टिंग सिंबल जो डिराइव कर रहा है, तो पहले क्या करेंगे, एक ऊपर एक लाइन और ऐड करेंगे। क्या लाइन होगी, फॉर एग्जाम्पल ई डिराइव टू दिस वन, तो ई डैश डिराइव टू दिस स्टार्टिंग सिंबल। इज इट क्लियर, इट इज ए नकली, आप लिखना चाहो तो समझ लो, अपने समझने के लिए नकली ग्रामर है, इट इज नॉट ए एक्चुअल दिस, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ग्रामर। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो इन्वॉल्व होता है वो क्या है, ड्रॉ द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, जो भी ग्रामर गिवन है, ध्यान से समझो, जो भी ग्रामर, हमने यहाँ पे फर्स्ट ग्रामर को सेलेक्ट किया, ई डैश डिराइव टू ई, वट एवर ग्रामर इज गिवन, उसके स्टार्टिंग में हम डॉट लगा देंगे, ठीक है। जो भी ग्रामर गिवन है, जो फर्स्ट ग्रामर को पढ़ा, उसकी स्टार्टिंग में डॉट लगा देंगे। डॉट लगाने से क्या होगा, वो कैनोनिकल कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैनोनिकल कलेक्शन, अब इस डॉट को एक्सप्लोर कैसे करते हैं, ये समझने की जरूरत है कि मतलब सर इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या इन्वॉल्व होगा। तो देखो, जिस भी ग्रामर से पहले ये डॉट हो, ठीक, मैं देखूंगा क्या ई का कोई और भी प्रोडक्शन है क्या। अगर ई का कोई प्रोडक्शन है तो यहाँ नीचे लिख देंगे। अब देखो ई का क्या प्रोडक्शन है, ई प्रोड्यूस टू बी बी, इज इट क्लियर, ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बी बी कर रहा है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा गैप करके लिखेंगे, ई प्रोड्यूस टू बी बी। अब ये तो ग्रामर कैसे, ये मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, ये ध्यान से समझो, ये इसलिए नहीं लिख रहा कि इसके नीचे है। अगर डॉट के बाद जस्ट क्या आ रहा है, कोई भी नॉन टर्मिनल आ रहा है, और वो नॉन टर्मिनल कुछ भी प्रोडक्शन दे रहा है, तो व्हाट एवर प्रोडक्शन इज गिवन, वो जो भी प्रोडक्शन दे रहा है उसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और उसके स्टार्टिंग में डॉट लगाएंगे। समझ में आ गया, तो हम फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे, डॉट। अब फिर से सेम स्टेप मैं रिपीट करूँगा, डॉट के बाद क्या आ रहा है, बी, डॉट के बाद जो बी आ रहा है वो कोई प्रोडक्शन दे रहा है क्या, वट एवर प्रोडक्शन गिवन बाय द बी, एनीवन प्लीज टेल मी, कोई बताओ बी क्या प्रोडक्शन दे रहा है, C, B और D। राइट। तो हम अब क्या करेंगे, इन सबको कॉपी करेंगे, सी बी एंड ऑब्लिक डी, और सब इसको क्या बनाना है, कैनोनिकल कलेक्शन आप बनाना है, उसके स्टार्टिंग में डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा बी डिराइव टू स्मॉल सी बी, इसके स्टार्टिंग में हम क्या लगाएंगे, डॉट। अब बताओ ये कुछ और भी ओपन होगा क्या,
अब डॉट के बाद क्या आ रहा है, सी, सी इज ए टर्मिनल, कैसे पता, स्मॉल लेटर में लिखा है सर, डॉट सी के बाद क्या है, टर्मिनल। अगर ये वेरिएबल होता ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर से बी आ जाता, आप समझो डॉट बी बी, तो बी का जो भी प्रोडक्शन है मैं फिर से लिखता है यहाँ पे। इज इट क्लियर? चलो यहाँ तक समझ आया? इज इट क्लियर बाय एवरीवन? Yes. हाँ, अभी और स्टेप इसमें इन्वॉल्व होगा अभी। इज इट क्लियर? चलो एक दो स्टेप और करते हैं तो फिर समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। यस शिवेंद्र, हैव यू एनी क्वेश्चन? आवाज कट रही है, चलो ठीक है, अभी और स्टेप करते हैं तो समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है। अब ये करता क्या है, ये स्टेप्स, अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ इस बंदे को ये जो है डॉट ई के बाद यहाँ पे ई मिल जाएगा तो इसकी देखो हमें करना क्या होता है, ध्यान से समझ लो इस ऑब्जेक्टिव में। पहले मैं कैनोनिकल कलेक्शन क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में सबके आगे डॉट लगाता हूँ और किसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, जो भी क्या करता है कोई ना कोई प्रोडक्शन देता रहे, जैसे डॉट ई के बाद क्या नॉन टर्मिनल हो और वो कोई प्रोडक्शन दे रहा हो, तो जस्ट हम वो वट एवर प्रोडक्शन इज गिवन सबके आगे क्या लगा लेंगे, डॉट लगा लेंगे। और सेकंड, अब इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जितने के आगे सबके आगे डॉट लगा दिया, लिख दिया। अब इस डॉट को हम क्या करते रहते हैं, शिफ्ट या रिड्यूस करते हुए कहां तक जाएंगे, इस डॉट को हर प्रोडक्शन के लास्ट में ले जाना है। इसका क्या मतलब होगा, ई डैश हमें कहां ले जाना है, ई डैश को जहां पे ई के बाद डॉट आया, यहाँ पे क्या है बी बी है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक बी इनपुट देंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से बी इनपुट देंगे, सो दैट ये जो डॉट की पोजीशन है ये शिफ्ट होकर कहाँ पे जाए, लास्ट में। यहाँ पे डॉट ये है, उसके बाद ये शिफ्ट होकर कहाँ पे जाए, बी के बाद है, ये डी के बाद। हम कर क्या रहे हैं, जब वो प्रोडक्शन स्टार्टिंग में होता है, वो इनिशियल स्टेट है कैनोनिकल, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर वो सक्सेसफुली वट एवर इनपुट वी हैव गिवन और वो सक्सेसफुली क्या हो रहा है, लास्ट पोजीशन पे चला जा रहा है, दैट मीन इट इज ए सक्सेसफुली रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसको सीखते हैं कैसे ये सक्सेसफुली रिड्यूस करते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हियर वी हैव चूज दिस वन ई डैश। अब मुझे एक चीज ये बताओ, ई डैश है, ठीक है, डॉट ई है, मैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो डॉट है वो लास्ट में चला जाए, तो डॉट लास्ट में कब जाएगा, एनीवन प्लीज गेस, जब मुझे इनपुट ई मिलेगा। इज इट क्लियर? जब फुली पार्स हो जाएगा। यस, फुली पार्स हो जाएगा, राइट। तो मुझे ई अगर इनपुट मिलता है तो फुली पार्स हो जाएगा, तो ये डॉट की लोकेशन कहाँ पे जाएंगे, लास्ट में। इसको करते हैं, इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, here we have mentioned मैं यहाँ पे maybe dot here, here we have an input as a e, अगर मैं यहाँ पे e इनपुट दे दूं तो क्या होगा, e की पोजीशन लास्ट में चले जाएगा, so that particular step ठीक है। अब ई डॉट में है, डॉट के बाद कुछ है क्या, अगर डॉट के बाद कोई भी क्या होता, नॉन टर्मिनल होता और वो जो भी प्रोडक्शन देता तो हम यहाँ नीचे फिर से लिख देते। ठीक है, अभी इसको करेंगे। दिस स्टेप इज क्लियर बाय एवरीवन? चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या इनपुट लेंगे, अभी मैं इसके लिए देख रहा हूँ, ई डिराइव टू डॉट वी बी, एनीवन कैन प्लीज टेल मी, मुझे इस डॉट को, और अच्छा एक बार और करना है, एक बार में एक ही टर्मिनल या तो शिफ्ट होगा या तो रिड्यूस होगा, बट वन टाइम वन, आइदर शिफ्ट और रिड्यूस, मतलब एक बार में ऐसा नहीं होगा मैं दोनों बी बी इनपुट दे दूँ तो दो चलाएगा, सिंगल स्टेप इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इनपुट बी। क्यों मैंने इनपुट बी दे दिया, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट ये जो डॉट की लोकेशन है वो कहाँ जाए, लास्ट में जाए। अब यहाँ पे इसको सीखते हैं कि क्या आएगा इस डॉट की लोकेशन। एनीवन प्लीज टेल मी, डॉट की लोकेशन क्या आएगी, यहाँ पे कैपिटल बी डॉट, इज इट क्लियर?
एनीबडी एनी डाउट? इसके बाद क्या स्टेप होगा? एनीवन प्लीज टेल मी, इसके बाद का स्टेप क्या होगा? अब देखो डॉट के बाद क्या आ रहा है? डॉट के बाद कोई वेरिएबल है कि टर्मिनल है? बताओ मुझे, डॉट के बाद कोई वेरिएबल है या टर्मिनल है? वेरिएबल है। हाँ, ये वेरिएबल है बी। अच्छा, बी कोई प्रोडक्शन दे रहा है क्या? यहाँ पे ऊपर देखो, बी कोई प्रोडक्शन दे रहा है? यस, बी गिव द प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है? अच्छा, कोई लोग पूछेंगे सर आपने ऊपर क्यों नहीं लिखा डिराइव किया, नीचे डिराइव कर रहे हैं? क्योंकि एक तो जो डॉट है वो हमारा कहाँ पहुंच गया? लास्ट में। ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, तो इसके आगे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो नहीं कुछ करेंगे। अगर डॉट के बाद जस्ट क्या आता है? कोई वेरिएबल आता है जो कि कोई ना कोई प्रोडक्शन देता रहता है। तो वट एवर प्रोडक्शन इट इज ए गिवन, सबके स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे? डॉट लगा देंगे। चलो इसको लगाते हैं। फिर हमें क्या मिल गया? ये हम क्या बना रहे हैं? कैनोनिकल कलेक्शन इसको बोलते हैं। अब हमें क्या मिल गया? बी। फिर से डॉट कहाँ लगेगा बताओ? डॉट स्मॉल पब्लिक डॉट डी। इज इट क्लियर? कोई और ओपन होगा? ये यहीं तक होगा। इज इट एनी पॉसिबिलिटी इट इज ओपन फर्दर? ये और नीचे ओपन होगा कि बस क्लोज हो जाएगा यहाँ पे? यस प्लीज रिस्पॉन्ड। ये भी पूरे पास होगा तो हाँ, अब इसके आगे तो कुछ होगा ही नहीं ना, क्योंकि क्या होगा? डॉट के बाद क्या आ रहा है? सी, टर्मिनल। सिर्फ हम फर्स्ट वाले को देखें, डॉट के बाद क्या आ रहा है? अगर कोई वेरिएबल होगा तभी नीचे एक्सपेंड होगा। यहाँ पे डॉट के बाद क्या? पूछ रहे थे आप? कौन से का पूछ रहे थे? कौन से का पूछ रहे थे? यस। किसका पूछ रहे थे आप? अच्छा, यही नहीं पता चल रहा है किसका पूछ रहे हैं हम। मैं यहाँ पे मेरा पूछ रहा हूँ। कर्सर ये दिस। अच्छा, इसका ये तो हाँ, जहाँ पे मैं मुझे प्रोसीड हाँ, यहाँ पे कोई प्रोसीड करेगा क्या? नहीं क्यों नहीं करेगा? नहीं, क्यों नहीं क्योंकि ये करेगा? सर नहीं करेगा हाँ, क्योंकि क्योंकि कोई डॉट के वेरिएबल नहीं है। राइट, डॉट के बाद क्या है? टर्मिनल है। राइट, राइट आंसर। ठीक है, तो अगर ये नहीं करेगा तो फिर से हम इसको क्या करेंगे? एक सर्किल के फॉर्म में ऐसे बना देंगे। और ये जो एरो है इसको हटा दें, समझने के लिए जो लगाए थे। ठीक है, अब मुझे ये भी रिड्यूस करना है, तो क्या करेंगे? अब इनपुट क्या लेना चाहिए? एक बार स्मॉल सी लेंगे, तो ये सी की पोजीशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में डी का लेंगे। आई होप थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ, चलो इसको थोड़ा सा और करते हैं तो समझ आएगा। एक बार समझ लेंगे कैनोनिकल कलेक्शन कैसे बनाते हैं, फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत। हियर वी हैव मेंशन। ठीक है, उसके बाद सर्किल भी बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैपिटल बी। कैपिटल बी क्या डिराइव करेगा? के लिए कर रहे हैं कैपिटल बी। अगर ये सी इनपुट देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? स्मॉल सी डॉट कैपिटल बी। इज इट क्लियर? अब फिर नीचे ये फर्दर यस सर इस वाली प्रोडक्शन में तो ऑलरेडी डॉट के बाद टर्मिनल्स हैं, तो हम फिर क्यों इसको रिड्यूस कर रहे हैं? हाँ, दोनों एकदम गुड क्वेश्चंस। देखो, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो डॉट है वो, जो मैं आपको ये तरीका बताऊं कि डॉट के बाद टर्मिनल है तो करेंगे, ये एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं ये टेक्निक। अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे आप करेंगे डॉट के बाद सी है, तो सर इसको हम क्या कर, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो डॉट की पोजीशन है वो कहाँ पे जाए? लास्ट में जाए। ठीक, और डॉट की पोजीशन कहाँ पे जाए? पहले सी आए, फिर बी आए और यहाँ पे जाए। और ये प्रोसीजर करते हुए डॉट जो इनिशियल में है उसको लास्ट में ले जाना है। और अगर बीच में हम इसकी जैसे ही मूवमेंट होता है या कोई इनपुट मे बी टर्मिनल आ रहा है, नॉन टर्मिनल आ रहा है, तो जैसे मैं इसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ और उसके जस्ट बाद अगर हमें क्या मिलता है? ठीक है, अगर उसके जस्ट बाद कोई भी
वेरिएबल मिलता है तो हम उसको भी साथ में एक्सपेंड करेंगे, वेरिएबल नहीं मिलता तो एक्सपेंड नहीं करेंगे। आर यू गेट द आंसर और नॉट? ओके सर। ओके चलो, अब देखो वो कह रहा है यहाँ पे, तो हमें इस डॉट की पोजीशन को कहाँ पे ले जाना है? लास्ट में ले जाना है। ठीक, तो ये लास्ट में ले जाने के लिए पहले एक बार में एक ही स्टेप मूव होता है, ये तो हमने पता कर लिया। तो हमें इनपुट क्या है यहाँ पे? स्मॉल सी लेंगे। स्मॉल सी इनपुट लेने के बाद क्या हुआ? ये बी सी डॉट बी हो गया। ओके, अब मैं क्या देख रहा हूँ, जो डॉट के बाद जस्ट क्या है? कैपिटल बी। ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, व्हाटएवर ये वेरिएबल जो भी प्रोडक्शन दे रहा होगा यहाँ पे लिख लेंगे। चलो ये वेरिएबल क्या प्रोडक्शन दिख रहा है लिखते हैं। ये वेरिएबल प्रोडक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है? डॉट सी कैपिटल बी डॉट डी। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? अब मैं यहाँ पे फिर से देखूंगा कि क्या ये डॉट के बाद फिर से ये कोई प्रोडक्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों क्या है? टर्मिनल है। फिर से इसको सर्किल के फॉर्म में ठीक है। अब ये तो सी का स्टेप हो गया, उसके बाद डी का स्टेप है। डी का स्टेप क्या होगा? मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पे कैपिटल भी होगा, डॉट हो जाएगा। अब एक चीज देखो, डॉट हमारा जिसके लास्ट में पहुंच गया वो फर्दर एक्सपेंशन नहीं करेगा। कौन से दो स्टेप हैं जो फर्दर एक्सपेंशन नहीं करेंगे, वो फाइनल में पहुंच चुके हैं? एक तो लास्ट वाला, एक फर्स्ट वाला। सबको ये चीज समझ में आ रही है? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो डॉट की पोजीशन है वो लास्ट में पहुंच जाए। तो ये वाला जो प्रोडक्शन है फर्स्ट इनिशियल लेवल है ये, बट बाकी जगह नहीं पहुंचा है, बाकी जगह जैसे बी में नहीं पहुंचा है, तो मे बी यू प्रोसीड फर्दर। हम इसको क्यों नहीं एक्सपेंड कर रहे हैं? इज इट क्लियर? क्योंकि जो डॉट की पोजीशन थी जो स्टार्टिंग में लेके चले थे वो लास्ट में पहुंचनी चाहिए थी, ये यहाँ पे मिल गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंचा है। देखो अभी एक भी बचा हुआ है, एक भी बचा हुआ, तो क्या करेंगे हम? एक इनपुट और लेंगे, एक इनपुट लेते हैं, ठीक है। द नेम इज क्या इनपुट लेंगे? एनी वन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या इनपुट लेंगे? मुझे डॉट की लोकेशन वहां पहुंचानी है तो सी। सी क्यों लेंगे बेटा? अभी ऊपर वाले को कर रहा है ना, वी हैव प्रोडक्शन दिस वन, बी लेंगे ना। अभी जो बी कैपिटल बी, अभी बी के बाद क्या होगा? फिर ये डॉट में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे देखो ग्रामर क्या हो रहा है हमारा, जो ग्रामर हो रहा है वो क्या होगा? ये हमारा कैपिटल ई डिराइव टू ई बी डॉट। अब ये बताओ इसके बाद भी ये कोई प्रोडक्शन देगा क्या? नो सर। नो, क्योंकि वो लास्ट में पहुंच गया, फाइनल पहुंच गया। अब इसके नीचे इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों को नहीं लिखेंगे, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बट इन दोनों को रिड्यूस जरूर करेंगे। एक चीज समझो, मतलब इसके डॉट यहाँ पे भी जो है उसको मैं मूव करते करते लास्ट में ले जाना चाहूंगा, और यहाँ पे भी जो डॉट है उसको भी लास्ट में ले जाऊंगा। बट अभी मैं फर्स्ट स्टेप इसकी बात कर रहा हूँ, इस ग्रामर को एक्सपेंड कर रहे हैं, ई डिराइव टू बी डॉट बी, तो इसके लिए कोई एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? या कोई डाउट है? अभी वो मैं करके दिखा रहा हूँ, नीचे वाला कैसे करते हैं। चलो अब, हाँ अब एक चीज ये देखो, अगर मैं इनपुट सी दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से इस वाले ग्रामर को देखिएगा, इनपुट सी दूंगा तो क्या होगा? सी डॉट बी की तरीका होगा, ये सी डॉट बी हो जाएगा, और डॉट के बाद फिर बी क्या होगा? फिर से अगेन एक्सपेंशन होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला स्टेप आएगा कि नहीं? ध्यान से देखो, यही वाला स्टेप आएगा, कोई और मैं एरो बना देता हूँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एरो भी बनाना, कौन सा प्रोडक्शन किस में जा रहा है। अगर मैं ऐसा कर जाऊं, यहाँ पे सी इनपुट दे दूं, इज इट क्लियर? ये ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं डी इनपुट देता हूँ तो सेम प्रोडक्शन आएगा। देखो कोई भी स्टेप हम 2 बार नहीं लिखेंगे, आपको लिखना हो तो लिख लो, सेम स्टेप वही आ रहा था इसलिए मैंने इसको लिखा। अब हमारा सी और डी दोनों रिड्यूस हो गए, इज इट क्लियर? मैं सेम स्टेप लिखता तो क्या होता, सी डॉट बी, फिर से बी क्या होता, फिर से एक्सपेंड होता, फिर से ये स्टेप आता। यहाँ पे डी क्या है, डॉट डी इनपुट मिलता, फिर से ये वाला स्टेप आता। क्लियर? अब ये वाला स्टेप फुल्ली क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ स्टेप नंबर 3, ये इस पे। यहाँ पे क्या इनपुट देना चाहिए फर्स्ट वाले को पिक करने के लिए? हाँ, एनीवन क्या इनपुट देंगे यहाँ पे? कैपिटल बी, ठीक है। क्यों कैपिटल बी यहाँ पे देंगे? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फर्स्ट ग्रामर है वो डॉट की लोकेशन अपने जगह पहुंच जाए। Here capital B and derive to small c capital B and after that dot. Is it clear by everyone? इसके आगे कोई और एक्सपेंशन होगा? प्लीज रिस्पॉन्ड। No, sir. हाँ, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं होगा, ठीक। अब अगर लेकिन अभी इस स्टेप पे खुद ही इन्वॉल्व है, ध्यान से देखो, डॉट के बाद सी है तो सर सी को तो फिर से एक्सपेंड करेंगे। ओके, सी को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं सी से इनपुट दे रहा हूँ तो फिर से ये स्टेप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक बार क्रॉस चेक करो। अगर मैं सी दे रहा हूँ तो सी डॉट बी आ रहा है, सी डॉट बी आ रहा है, ओके, और बी को फिर से एक्सपेंड करेंगे तो वी हैव फाइंड आउट दिस स्टेप सिमिलर, ठीक। और अगर सर यहाँ पे डी देंगे तो अभी इस वाले प्रोडक्शन को देख रहे हैं, बी डिराइव टू डी, तो क्या होगा, ये स्टेप फिर से आएगा। तो जो स्टेप फिर से आएगा हम एरो से इसको इंडिकेट कर देंगे, नया स्टेट क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको रिवीजन कर लेना, फिर से मैं कल फिर से रिपीट कर दूंगा अगर कोई डाउट है तो। इज इट क्लियर? हाँ, चलो इसको क्या बोलते हैं, LR0 आइटम। अगर कोई हमसे पूछे किसी ग्रामर का LR0 आइटम बनाना है तो वी हैव यूज दिस स्टेप। क्या करना है, पहले ग्रामर को आर्गुमेंट ग्रामर में बनाना है। कैसे बनाएंगे, जो भी उसका स्टार्टिंग सिंबल होगा, स्टार्टिंग सिंबल लिखेंगे। जैसे अगर वो ई स्टार्टिंग सिंबल है तो हम क्या लिखेंगे, ई डैश डिराइव टू ई। एस स्टार्टिंग सिंबल है तो क्या लिखेंगे, एस डैश डिराइव टू एस। दैट इज ए नकली ग्रामर, दैट मीन इट इज नॉट ए एक्चुअल ग्रामर। उसके बाद क्या करेंगे, सबके स्टार्टिंग में डॉट लगाएंगे और उस डॉट को एक्सपेंड करते हुए, ठीक है, जो भी यहाँ पे ग्रामर दिया होगा उस डॉट को एक्सपेंड करते हुए क्या करेंगे, लास्ट तक ले जाएंगे। इसका मतलब वो टोटली रिड्यूस हो गया। और एक और स्टेप ध्यान में देना है कि अगर जस्ट डॉट के बाद कोई भी वेरिएबल आ रहा है तो वट एवर वेरिएबल इज द डेरिवेशन इज गिवन, हम वहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग हो चुकी है, वी हैव स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर एंड 1 second I take that